Good morning, students. In this video, we discuss about our next topic, that is rectification. In the previous video, we learned about chord tracing as well as rule of DAS. In unit number 4, there are 3 points. One is rule of DAS, second is chord tracing, and third one is rectification. Okay. Now what is rectification? Rectification means is a length of arc. Rectification is a length of arc, and we denote it as arc as S. Okay. In chord tracing, we already seen that there are 3 types of chord. One is Cartesian, second is polar, and third is parametric. In this topic, we also discuss about the Cartesian form, polar form, and parametric form. Here we have to obtain the length of chord in Cartesian form, in polar form, as well as in parametric form. Okay. Now we see some formulas. First of all, Cartesian form. In Cartesian form, suppose y is a function of x, then what is the length of r, or then which is integral xa to xb under root of 1 plus dy by dx whole square into dx. Okay, if y is a function of x. Similarly, if x is a function of y, then length of arc is equal to integral y to yb, means here x is a function of y, means y is varying here. So x is a function of y, means y is variable, means y is varying. So s is equal to integral y to yb under root of 1 plus dx upon dy whole square into dy. Okay. If x is a function of y, then we use the second formula, and if y is a function of x, then we use the first formula. After that, the polar form. Now we know that in polar form the variables are r and theta. Then if r is a function of theta, then we use this formula, that is s is equal to integral theta 1 to theta 2, means here theta is varying, under root of r square plus dr by d theta whole square into d theta. Okay. Then parametric. If our given curve is in parametric form, and we know that parametric curve is always, there are 2 equations, and both the variables are the function of same variable. So here, if x is a function of t and y is a function of t, then the length of the curve is equal to s is equal to integral t1 to t2 under root of dy by dt whole square plus dx upon dt whole square into dt. Okay. Suppose students, here x and y is a function of theta. अगर आपको यहाँ पे x and y function of theta दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? Simply we replace t by theta, means the formula is theta 1 to theta 2 dy by d theta whole square plus dx upon d theta whole square into d theta. आपको ये हमेशा याद रखना है, कार्टेशियन फॉर्म में वेरिएबल x एंड y रहेंगे. अगर हमारा पोलर फॉर्म है तो वेरिएबल r एंड थीटा रहेंगे, r एंड थीटा. बट इन पैरामेट्रिक फॉर्म देर आर ऑलवेज 2 इक्वेशंस एंड बोथ द वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल. मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन रहेगी, लेकिन दोनों की जो राइट साइड रहती है वो सेम वेरिएबल के फंक्शन रहेगा. ओके, ये आपको याद रखना है. And with the help of these 3 formulas, we obtain the length of the given arc or length of the given curve. Okay, then we see the example. So see the example. Find the perimeter of cardioid are equal to a into 1 plus cos theta. Find the perimeter of the cardioid are equal to a into 1 plus cos theta. Okay, means first of all here we have to find the perimeter of the cardioid. Okay, and perimeter means length of the cardioid. Then after the second part is, hence prove that upper half of the cardioid is bisected by the line theta equal to pi by 3. Okay, now first of all, अब देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है. सबसे पहले तो हमें कार्डियोइड की लेंथ फाइंड करनी है. लेंथ मतलब पेरीमीटर, दोनों सेम है. तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे कार्डियोइड का.
देन उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। एंड फॉर द लेंथ ऑफ कार्डियड फर्स्ट वी ड्रॉ द कार्डियड। सबसे पहले तो हम कार्डियड ड्रॉ करेंगे। देखो, अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपको इसके शेप पता होने चाहिए, फिर भी अगर आपको इसके शेप पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली ए 0, ए पाई बाय 2, ए पाई और ए 3 पाई बाय 2, 4 ही पॉइंट्स लेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको इसका शेप पता नहीं है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। cos 0 1, 1 + 1 2, 2 × a 2a, तो यहाँ पे बनेगा 2a। ओके, उसके बाद हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 2, बट cos पाई बाय 2 क्या आएगा हमारा 0, 1 + 0 1, 1 × a। ओके, उसके बाद पाई पुट करेंगे, cos ऑफ पाई -1, प्लस माइनस कैंसल, ये बन जाएगा 0, मतलब ओरिजिन पे। ओके, उसके बाद 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 के लिए वैल्यू आएगी 0, 1 + 0 1, 1 × a, ये वैल्यू हो गई a। नाउ इट ट्रेस ऑफ कार्डियड। अब देखो ये बन गई हमारी कार्डियड। So students, this is our cardioid. Okay, that is r equal to a into 1 plus cos theta. Now we have to obtain the perimeter of the whole cardioid. हमें देखो पूरी ये जो हमारी कंप्लीट कार्डियोइड है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लेकिन अब देखो सबसे पहले कि जो भी हमारा इक्वेशन है ये कौन से फॉर्म में है, दैट इज इन द पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म में है तो हमारे पास जो फॉर्मूले उसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे, पोलर फॉर्म वाला। मीन्स r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, देन वी यूज द फॉर्मूला दैट इज s इज इक्वल टू इंटीग्रल थीटा 1 to थीटा 2, वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है आर्क। अब देखो ये जो है अपर आर्क, ये जो है अपर आर्क, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अपर आर्क का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, मीन्स लेंथ फाइंड करेंगे। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट, लेकिन देखो हमें कंप्लीट कार्डियड का लेंथ फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, हमें पूरी कार्डियड की लेंथ फाइंड करना है। अगर हम अपर पार्ट की अगर लेंथ फाइंड करते हैं तो हम डायरेक्टली होल पार्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए पार्ट और ए पार्ट सेम है। देखो यहाँ पे भी ए पॉइंट है, यहाँ पे भी ए पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि अब वो अपर पार्ट ऑफ द कार्डियड इज सेम एज लोअर पार्ट ऑफ द कार्डियड। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपर पार्ट की लेंथ फाइंड कर लेंगे और कंप्लीट कार्डियड क्या बन जाएगी हमारी, 2 टाइम्स ऑफ अपर पार्ट। ओके, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर पार्ट की लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, नाउ लेंथ ऑफ आर्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज यहाँ पे फॉर्मूला इंटीग्रल थीटा 1 to थीटा 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr बाय d थीटा होल स्क्वायर इंटू d थीटा। एंड दैट इज दी, ये हम किसकी आर्क फाइंड करेंगे, सबसे पहले अपर पार्ट की, देन कंप्लीट हमारा 2 टाइम मिल जाएगा। सो अब देखो हमारा आर है, डी आर बाय डी थीटा में फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डिनोट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ सिंस r is equal to a into 1 plus cos theta, so what is, then सबसे पहले हम r स्क्वायर फाइंड करेंगे, या तो dr बाय डी थीटा, dr बाय
So the derivative of r is dr by d theta is equal to a into derivative of 1 plus cos theta is minus sin theta. Okay, so this minus a sin theta. After that, first we obtain dr by d theta whole square, then r square plus dr by d theta whole the r square plus that term, and then we put the complete term in equation number 1. So अब देखो हमें इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आएगा डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर. इट बिकम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके स्टूडेंट्स, देन आर स्क्वायर प्लस है, सो यहाँ इसमें हम आर स्क्वायर ऐड करेंगे. इट बिकम आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू. Now what is r? r क्या है हमारा? a into 1 plus cos theta. So what is r square? That is a square 1 plus cos theta whole square plus dr by d theta whole square क्या है? a square sin square theta. Okay. Then अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. अब देखो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर दोनों टर्म में प्रेजेंट है तो कॉमन निकल जाएगा. ए स्क्वायर एज इट इज. अगेन स्क्वायर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर क्या आएगा? इट बिकम 1 प्लस कॉस ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन, सिंपली क्या बचा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा. सो इट बिकम ए स्क्वायर इनटू नाउ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1. सो दैट इज 1 प्लस 1 इट बिकम 2 इन प्लस 2 इनटू कॉस ऑफ थीटा. ओके, देन व्हाट इज आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर. ये क्या बनेगा? देखो 2 कॉमन निकलेगा. 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा. ओके, देन इट बिकम 2a स्क्वायर इंटू नाउ व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा यूजिंग द हाफ एंगल फॉर्मूला. इट बिकम 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2. ओके, सो 2 इंटू 2 4. इट बिकम 4a स्क्वायर cos of theta by 2, and which is the value of r square plus dr by d theta whole square. Okay, now we put this value in equation number 1. So our equation 1 is now equation 1 becomes equation 1 is s is equal to integral under root of आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर. इक्वेशन 1 तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बाय 2 दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. ओके, हाफ एंगल फॉर्मूला इनटू डी थीटा. अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी? Here we first obtain the perimeter of the upper part of the cardioid. अब देखो अपर पार्ट में थीटा कैसे वेरी होगा? यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट 0. कहाँ तक निकल रहे हम? अपर पार्ट खत्म कहाँ पे होता है? यहाँ पे खत्म होता है. और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? पाई. सो व्हाट आर द लिमिट? 0 to पाई. थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई. ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर इन अपर पार्ट थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to pi. Okay, so here limits are 0 to pi. Then s is equal to
integral 0 to pi then square root of 4a square cos square theta by 2. And what is the square root of 4a square? That is 2a. A to cos square root cos of theta by 2 into d theta. Okay, then it becomes integral 0 to pi, 2 as a constant, 2a constant, and what is the integral of cos theta by 2? Integral of cos become sin. So it become sin theta by 2 upon derivative of angle, and derivative of theta by 2 क्या आएगा? 1 by 2, and limit as 0 to pi. Okay, then apply the limits. Now it become 2a into reciprocal of 1 by 2 क्या बनेगा? 2. 2 into 2a, it become 4a. क्योंकि 1 upon 1 by 2 become 2. So 2 into 2, 4a. And if we apply the limits here, then we get sin upper limit pi, sin pi by 2 minus sin 0. And so sin pi by 2 become, sin pi by 2 क्या रहता है? 1. 1 minus 0, sin 0 0. So what is yes? Yes is equal to 4a. Okay, means length of the upper half of the cardioid is 4a, but we have to obtain the length of the complete cardioid. So what is the length of complete cardioid? हमें क्या करना पड़ेगा? हमने अपर पार्ट की लेंथ फाइंड की है, अब हमें पूरे पार्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और दोनों पार्ट इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो आफ्टर दैट लेंथ ऑफ होल कार्डियोइड, लेंथ ऑफ होल कार्डियोइड इज इक्वल टू 2 इंटू क्या रहेगी? अपर हाफ. और अपर हाफ क्या है हमारा? यस, अपर हाफ ऑफ कार्डियोइड, एंड इट बिकम 2 इंटू यस. एंड व्हाट इज यस हियर? 2 इंटू 4a, एंड 2 इंटू 4a बिकम 8a, एंड विच इज द लेंथ ऑफ द कंप्लीट कार्डियोइड ऑफ द गिवन कर्व. ओके, ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट. अब हमारा सेकंड पार्ट. अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि जो हमारी कार्डियोइड है वो कार्डियोइड पाई बाय 3 लाइन से बाइसेक्ट होती है, अब ये शो करना है. सो सेकंड पार्ट इज, अब देखो सेकंड पार्ट के लिए, नाउ सेकंड पार्ट में क्या करना है? टू शो दैट अपर हाफ ऑफ कार्डियोइड is bisected by the line theta equal to pi by 3. ये हमारी कार्डियोइड है. दिस इज आवर कार्डियोइड. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि कार्डियोइड का जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट इस लाइन से बाइसेक्ट होता है. बाइसेक्ट मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं. ये जो पार्ट है हमारा अपर पार्ट, दिस अपर हाफ ऑफ द कार्डियोइड इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाय 3. नाउ थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 लाइन कहाँ पे आएगी? यहाँ पे. नाउ वी हैव टू शो दैट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 लाइन बाइसेक्ट द अपर पार्ट ऑफ द कार्डियोइड. मतलब इस लाइन से अपर पार्ट के दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे. हमें ये शो करना है. मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो, अपर हाफ की लेंथ क्या है? 4a. तो अब हमें क्या करना है कि ए बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या शो करना है कि जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट, इसकी लेंथ क्या आनी चाहिए? उसके हाफ, मीन्स 4a की हाफ क्या आएगी? 2a. ओके, सो
First we show that the upper half of the cardiac is bisected by this line. Now, or this S, arc of the length, arc. हाँ, S is equal to length of R is, अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी हमारे, 0, ऐसे 0 है, यहाँ पे पाई है। अब हमें शो करना है कि बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हमारे लिमिट कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक, लाइन तक। मीन्स लिमिट्स आर 0 to π/3। ओके, अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला सेम रहेगा, r² dr/d होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, फॉर्मूला सेम ही है क्योंकि सिर्फ हमें शो करना है। देन इंटीग्रल 0 to π/3 अंडर रूट ऑफ what is r² plus dr/d whole square, it become 4a² cos² θ/2 into d theta. Okay, then taking the square root 0 to π/3, it become 2a cos of θ/2 d theta. Okay, now we simplify it. S is equal to, so it is not written S1. S1 is equal to 0 to π/3, 2a keeping as it is. Integral of cos θ/2 is again same, that is sin θ/2 upon 1/2, but limits are 0 to π/3. Okay, then it become 1/2 का reciprocal 2, 2 into 2a, it become 4a into limits are cos of sin. Apply the upper limit. Upper limit theta is π/3. So π/3 upon 2, it become π/6. π/6 minus sin 0. And what is sin 0? Sin 0 is 0. Okay. Then it become S1 is equal to 4a into, what is sin π/6? Sin π/6 is 1/2 minus 0. So it becomes 4a into 1/2 means 2a. And so what is S1? S1 is 2a. And that S1 means the S1 क्या है हमारा? It become, एक कैसे मिला हमें कि थीटा इक्वल टू π/3 लाइन अगर कार्डियाइड के अपर हाफ को अगर बाइसेक्ट करती है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, S1 is 2a. Hence we get the solution. Hence proved. In this way we get the solution. Okay, then we see the next example. So student, this is our next example. Show that in catenary y is equal to c into cos hyperbolic of x upon c, the length of the r from vertex to any point is given by s is equal to c into sin hyperbolic of x upon c. Okay, यहाँ पे हमें कैटेनरी की लेंथ, ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कैटेनरी. एक्चुअली कैटेनरी मतलब हैंगिंग वायर. ये जो हैंगिंग वायर रहती है ना ऐसी, इसको हम कैटेनरी बोलते हैं. हैंगिंग वायर इज नोन एज कैटेनरी. नाउ कैटेनरी की लेंथ हमें द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम वर्टेक्स. अब देखो लेंथ हमें कहाँ से कहाँ तक फाइंड करनी है, ओनली वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स ओरिजिन. सपोज यहाँ पे अगर हमारा ओरिजिन रहता है, ओरिजिन मतलब 0 0, ओरिजिन से एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट तक. सपोज हमने ए पॉइंट लिया यहाँ पे, एक कोई भी पॉइंट है, दैट इज सपोज एक्स वाई. हाँ, कोई भी पॉइंट कैटेनरी का ओरिजिन से एक कोई भी पॉइंट वहां तक हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. और वो लेंथ क्या आएगी हमारी, एस इक्वल टू सी इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स अपॉन सी. ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे लिमिट्स क्या आएंगे. y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो मतलब यहाँ पे x वैल्यू होगा. x अगर वैल्यू होता है तो x के लिमिट क्या आएंगे, लोअर लिमिट 0, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है वो. तो यहाँ पे x का लोअर लिमिट क्या आएगा 0, और अपर लिमिट, और 0 से कहाँ तक जाएगा, कैटेनरी के कोई भी पॉइंट तक.
अब हमें यहाँ पे पॉइंट पर्टिकुलर दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का x कोऑर्डिनेट लेंगे क्योंकि x वैरी होता है, तो 0 to x, लिमिट्स आर 0 to x। लिमिट 0 to x क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है और अपर पॉइंट इज नॉट गिवन हियर, सो वी टेक एनी पॉइंट। सो हियर एनी पॉइंट इज x, क्योंकि x वैरी हो रहा था, हम x लेंगे क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, और इन टर्म्स ऑफ a 2a 3a 4a कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको x ही लेंगे। ओके, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, यहाँ पे आपको कैटेगरी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। गिवन y इज इक्वल टू c इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x अपॉन c। ओके, इसके बाद हियर x वेरीज फ्रॉम, x कैसे वेरीज होगा, x वेरीज फ्रॉम 0 to x। ओके, क्योंकि वर्टेक्स टू एनी पॉइंट है, x वेरीज फ्रॉम 0 to x। नाउ s is equal to or length of arc, now length of arc s is equal to integral xa to xb formula under root of 1 plus dy by dx whole square into dx। ओके, सो इट बिकम, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। हाँ, इसको पहले लिमिट अप्लाई कर लेंगे। देन s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x, लिमिट्स आर हियर 0 to x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इनटू dx, इक्वेशन 1। ओके, देन वी ऑब्टेन dy by dx। नाउ y इज इक्वल टू, व्हाट इज y, c cos हाइपरबोलिक ऑफ x अपॉन c। देन व्हाट इज dy by dx, डेरिवेटिव के लिए देखो c कांस्टेंट है, कीपिंग एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos। हाँ, यहाँ पे देखो फंक्शन कौन सा है, हाइपरबोलिक है, जनरली डेरिवेटिव ऑफ cos क्या रहता है, माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है हाइपरबोलिक फंक्शन है, सो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। So derivative of cos is here sin hyperbolic of x upon c into derivative of angle। अब देखो एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल इज x upon c, तो डेरिवेटिव ऑफ x upon c क्या आएगा यहाँ पे, 1 by c, because x are the 1 by c are the constant and derivative of x is 1, so dy by dx is equal to sin hyperbolic of x अपॉन c, c कैंसल। ये हमेशा ध्यान में रखना कि हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स ऑलवेज क्या रहते हैं, पॉजिटिव। देन यहाँ पे देखो dy by dx स्क्वायर फाइंड करना है, सो dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x अपॉन c। ओके, देन 1 प्लस है, सो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x अपॉन c। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ऐसे ही रिलेशन हाइपरबोलिक में भी रहते हैं, तो हाइपरबोलिक में रहता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1। सो व्हाट इज 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में रहता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, सिमिलरली हाइपरबोलिक में भी रिलेशन रहते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन सी, इट बिकम कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन सी। सिंपली चेंजेस क्या है यहाँ पे x है, यहाँ पे x बाय c है।
ओके, अब देखो, अब हमें ए वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है. सो इक्वेशन 1 बिकम्स s is equal to integral 0 to x under root of cos hyperbolic square of x upon c into dx. Then it become 0 to x, इसका square root cos hyperbolic of x upon c into dx. Okay, then we integrate it. Now integrating, and integral of s is equal to integral of cos is again sine hyperbolic of x upon c and limit as 0 to x. Now apply the limit, upper limit x is equal to x, so it becomes sine hyperbolic of x upon c माइनस क्या आएगा, हाँ एक मिनट, इसका इंटीग्रल ऑफ cos is sin hyperbolic of x upon c divided by डेरिवेटिव ऑफ एंगल. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/c and limit as 0 to x. Okay, so s is equal to 1/c का रेसिप्रोकल c and लिमिट्स किसको अप्लाई करने पड़ेंगे हमें, साइन को. साइन हाइपरबोलिक ऑफ x is equal to x मीन साइन हाइपरबोलिक ऑफ x by c अपर लिमिट के लिए, माइनस लोअर लिमिट साइन हाइपरबोलिक ऑफ x is 0, 0/c is 0. Then s is equal to c into sine hyperbolic of x upon c because sine hyperbolic of 0 is 0. So we get length of catenary is s is equal to c into sine hyperbolic of x upon c. Okay students, in this way we get the length of the given catenary. So I hope आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे. सो थैंक यू.